یہ کہانی ایک الگ ہی دنیا کی ہے جہاں 4 ایسی قومیں رہتی ہیں جن کے پاس اپنی اپنی سپر پاورز ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ایئر بینڈرز جن کے پاس ہوا کو کنٹرول کرنے کی طاقت ہے، دوسری فائر بینڈرز جو کہیں بھی آگ لگا کر اسے کنٹرول کر سکتے ہیں، پھر واٹر بینڈرز جو پانی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور آخر میں ارتھ بینڈرز جو زمین اور اس کی مٹی کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ تمام لوگ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے لڑ نہ پڑیں، اس دنیا میں جنگ نہ ہو جائے، اس کے لیے ایواتار یعنی ایک ایسے انسان کا ہونا ضروری ہے جس کے پاس ہوا، پانی، آگ اور زمین چاروں ایلیمنٹس کو ایک ساتھ کنٹرول کرنے کی سپر پاور ہو۔ پتہ چلا ہے کہ فائر بینڈرز نے اس دنیا پر حکمرانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسی لیے وہ باقی سب بینڈرز کو مار رہے ہیں۔ ایواتار اینگ اس جنگ کو روکے گا جو اس وقت ایک ایئر بینڈر ہے۔ اس کا ماسٹر اسے ایئر بینڈنگ کی تربیت دیتا ہے، لیکن اینگ ابھی تک اپنے ایواتار ہونے کی سچائی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے ایئر بینڈ اینگ کے ماسٹر پر غصہ ہو رہے ہیں کہ اینگ کو اپنی ایواتار والی ٹریننگ شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ اب فائر بینڈر ان لوگوں کے علاقے میں داخل ہو کر انہیں مارنا چاہ رہے تھے۔ ماسٹر بھی صحیح وقت پر دیکھ کر اینگ کو اس کے ایواتار ہونے کی سچائی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی تربیت جلد مکمل کر کے فائر بینڈرز کی طرف سے ہونے والے اس ظلم کو روکنا ہوگا۔ اینگ جو صرف 12 سال کا تھا یہ سب باتیں سمجھ نہیں پاتا، وہ اس ذمہ داری سے بہت ڈر گیا اور اپنے ماسٹر سے کہتا ہے کہ میں ایواتار نہیں بننا چاہتا۔ یہ سب چیزیں اس کا موڈ خراب کر دیتی ہے۔ موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وہ اپنے پالتو جانور سے بات کرتا ہے اور اس کے ساتھ اڑ کر سیر کے لیے چلا جاتا ہے، جبکہ اس کے پیچھے اس کے علاقے میں آگ کا حملہ ہو چکا تھا۔ فائر بینڈرز نے تھوڑے ہی وقت میں ایئر بینڈرز کے پورے ٹیمپل کو تباہ کر دیا تھا۔ انہوں نے تمام ایئر بینڈرز کے ساتھ اینگ کے ماسٹر کو بھی مار ڈالا اور جو بچا تھا وہ صرف اینگ ہی تھا جو اپنے پالتو جانور کے ساتھ سیر پہ نکلا تھا، لیکن وہ بھی طوفان میں پھنس جانے کے بعد پانی میں گر جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پانی میں ڈوب جاتا ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کی ایواتار طاقتیں جاگ گئی ہیں۔ اس کے سر پر بنے ٹیٹو سے تیز روشنی نکلی تھی۔ اس منظر کے بعد کہانی میں 100 سال گزر جاتے ہیں اور اچانک برفانی پہاڑ سے تیز روشنی نکلتی ہے اور وہ پہاڑ ایک بڑے دھماکے کی طرح پھٹ جاتا ہے جس میں سے اب اینگ نکلا تھا۔ یہ واٹر بینڈرز کا علاقہ تھا جہاں کٹارا نامی واٹر بینڈر اپنے بھائی کے ساتھ ٹریننگ کر رہی تھی۔ یہ واقعہ دیکھ کر وہ دونوں ڈر جاتے ہیں اور وہ اینگ کو اپنے ٹیمپل میں لے آتے ہیں۔ اینگ کا یہاں سے نکلنا فائر بینڈرز کا شہزادہ زوکو بھی دیکھ چکا تھا جو دنیا میں ایواتار کو تلاش کرنے کے مشن پر تھا۔ جب اینگ کو واٹر بینڈرز کے مندر میں ہوش آتا ہے وہ اپنے ساتھ ہونے والا سب کچھ لوگوں کو بتاتا ہے کہ جب اس کے علاقے میں آگ کا حملہ ہوا تھا تو وہ وہاں سے سیر پر نکلا ہوا تھا اور طوفان میں پھنس جانے کے بعد اس مندر میں اسے ہوش آیا ہے۔ واٹر بینڈرز کی ایک بوڑھی خاتون اس سے کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جس حملے کی تم بات کر رہے ہو وہ آج سے 100 سال پہلے اس دنیا میں ہوا تھا جس میں تمام ایئر بینڈرز ہلاک ہو گئے، ان کی پوری نسل ختم کر دی گئی تھی، یہاں تک کہ اس جنگ میں بہت سے واٹر بینڈر بھی مارے گئے، بس ایک کٹارا ہی ان کے قبیلے میں آخری واٹر بینڈر رہ گئی ہے۔ اینگ سے کچھ اور بات کرنے کے بعد بوڑھی عورت کو پتا چلا کہ اینگ ایک ایواتار ہے اور اس دنیا میں بچا آخری واٹر بینڈر بھی۔ اینگ نے اپنے پالتو جانور کو بھی یہاں بلا لیا تھا، وہ کچھ دن یہاں رہتا ہے اور واٹر بینڈر کٹارا کا اچھا دوست بن جاتا ہے جس سے ابھی تک اپنے اختیارات کو کنٹرول کرنا نہیں آیا تھا۔ اینگ اسے اپنے سول اور ایموشنز پر قابو رکھتے ہوئے فوکس کرنے کا ہنر بتاتا ہے جس کی مدد سے وہ اب واٹر بینڈنگ اچھی طرح کر پا رہی ہے۔ دوسری طرف فائر بینڈرز کا شہزادہ زوکو اپنے انکل کے ساتھ مل کر ایواتار اینگ کو پکڑنے کے لیے واٹر بینڈرز کے گاؤں میں آتا ہے۔ جب اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ وہ اینگ اس کے حوالے کر دیں تو اسے بچانے کے لیے کٹارا کا بھائی زوکو کو لڑنے کا چیلنج دے دیتا ہے۔ زوکو ایک تربیت یافتہ فائر بینڈر تھا جبکہ اس کے سامنے ایک عام آدمی تھا جسے وہ آسانی سے ہرا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے سامنے لڑکے کو مار دیتا لڑائی ختم کرنے کے لیے اینگ سامنے آتا
आता है और इनके साथ चला जाता है। एंग को शिप के जेल में डाल दिया गया। एंग यहाँ अपनी एयर बेंडिंग की महारत को इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी से अपनी जेल की चाबियां चुरा लेता है और यहाँ के सिपाहियों को धोखा देता है। जेल से बाहर निकलकर जोकू के शिप का दौरा करता है, जहाँ इसे एवाटार पर लिखी हुई जोकू की किताब मिलती है, जिसे वो चोरी करता है और शिप से उड़ता है तो जोकू की नजर में आ जाता है। जोकू आग से एंग पर हमला कर रहा था, जिससे बचते हुए इससे पहले कि वो पानी में गिरता कटारा और इसका भाई एंग को बचाने के लिए इसके पालतू जानवर पर वहाँ पहुँच जाते हैं। ये लोग एयर बेंडर्स के टेम्पल में जाते हैं, जहाँ सब कुछ तबाह हो गया था। एंग वहाँ अपने मास्टर की हड्डियों को देखता है तो दुख और गुस्से से इसका बुरा हाल हो जाता है। ऐसे में इसकी सारी एवाटार की ताकत दोबारा बेदार हो जाती है, जिनको अपने दिल पर काबू करते हुए इसने बड़ी मुश्किल से काबू में किया था। वो बहुत रो रहा था। इस वक्त कटारा इसकी हौसला अफजाई करती है। एंग कहता है कि मेरी वजह से 100 साल पहले मेरी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन अब मैं पहली गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं अब एवाटार की ट्रेनिंग खुद से पूरी करूंगा। शहजादा जोकू की एवाटार पर लिखी गई किताब जो इसने शिप से चुराई थी, इसके जरिए इसे पता चलता है कि एवाटार की तरबियत शुरू करने के लिए इसे पहले पिछली सभी एवाटार की तमाम ताकतों को बेदार करना होगा। इसीलिए पहले वो क्वेसी एवाटार के टेम्पल में जाते हैं, जो इनके करीब एक जजीरे पर था। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो जजीरे के लोग इन पर हमला करके इन्हें पकड़ने वाले होते हैं कि क्वेशी के मुजस्मे से एंग पर एकदम से रोशनी गिरती है। जजीरे के लोग ये देखकर हैरान होते हैं और इनको अपने सरदारों के पास ले आते हैं। वो एंग और एंग के साथियों को बताते हैं कि दरहकीकत इनके पास किसी किस्म की भी बेंडिंग पावर्स नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने आप को नहीं बचा सकते। इसलिए वो किसी अजनबी को अपने जजीरे पर नहीं आने देते। एंग कहता है कि मुझे सिर्फ क्वेशी एवाटार के बारे में जानना है और इनकी पावर्स को बेदार करना है, क्योंकि मैं खुद एक एवाटार हूँ। ये सुनकर वो उसकी मदद करने पर राजी हो गए और रात को जोकू इनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और जजीरे के लोगों से कहता है कि हम यहाँ एक मुजरिम को पकड़ने आए हैं। अगले दिन एंग दोबारा क्वेशी के मुजस्मे के पास जाता है और इस वक्त जब मुजस्मे से रोशनी इस पर पड़ती है तो वो अचानक रूहों की दुनिया में पहुँच जाता है और एवाटार क्वेशी से मिलता है तो इसे बताती है कि तुम्हारी पहली एवाटार की ट्रेनिंग न करने की वजह से दुनिया इस हाल तक पहुंची है और अब भी अगर तुमने ट्रेनिंग ना की तो वाटर बेंडर्स का इलाका भी तबाह हो जाएगा, जिसके विजन भी क्वेशी के एंग को दिखाई। वो कहती है कि तुम्हें अकेले रहकर तरबियत करनी होगी, सबका सहारा छोड़कर, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के लोग ही हमारी कमजोरी होते हैं और एवाटार कमजोर नहीं हो सकता। थोड़ी देर के बाद क्वेशी अपने एवाटार की ताकतों का इस्तेमाल करती है। एंग की बॉडी पर कब्जा करके अपने इंसानों वाली दुनिया में लोगों की मदद के लिए आती है, जहाँ इसे मालूम हुआ कि इसके लोग मुश्किल में हैं और फायर बेंडर्स ने इन पर हमला कर दिया था। इस जगह पहले कटारा जोकू से लड़ रही थी। वो इसे मारना चाहती थी क्योंकि वो खुद तरबियत याफ्ता नहीं थी, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन क्वेशी ने तो थोड़ी देर में अपने चारों एलिमेंट्स की बेंडिंग ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फायर बेंडर के तमाम सिपाहियों को वहाँ से दूर गिराया था। सब डर गए और भाग गए, जिसके बाद क्वेशी एंग की बॉडी से निकल जाती है और एंग अपनी असली हालत में आ जाता है। गांव वालों ने एंग का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्होंने तो एंग को ही अपने दुश्मनों से लड़ते देखा था। इसके बाद एंग अपने साथियों के साथ वाटर बेंडर्स के इलाके में जाता है क्योंकि इसे क्वेशी ने बताया था कि अब वो वाटर बेंडर्स के इलाके पर बहुत बुरा हमला होने वाला है। इसलिए वो पहले वाटर बेंडिंग सीखता है और इस इलाके को बचाने का फैसला करता है। इस मंजर में दिखाया जाता है कि एवाटार क्वेशी के जजीरे इस लैंड से हारने के बाद जोकू से जोकू की ही आर्मी के लोग मिलते हैं, जो इससे पहले इसका साथ न देने की वजह से माफी मांगते हैं। ये शख्स जोकू से कहता है कि अगर आप हमें पहले ही एवाटार की मुलाकात के बारे में बताते तो हम आपका साथ देते। जोकू इस आदमी से कहता है कि ठीक है, ये बात तुम्हें पता चल गई, तुम अब ये बात किसी को नहीं बताओगे। लेकिन वो ये खबर जोकू के डैड यानी फायर बेंडर्स के राजा को बता चुका था, जो खबर सुनते ही वो अपनी बेटी से कहते हैं कि देखो जोकू काबिल बनता जा रहा है, इसे एवाटार मिल गया है। ये सुनकर जोकू की बहन को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश नहीं थी क्योंकि वो अपने डैड के बाद खुद फायर बेंडर्स की मलका बनना चाहती थी और इसका एक तरीका यही था कि वो जोकू से ज्यादा काबिल बने। जहाँ वाटर बेंडर्स के इलाके की तरफ परवाज करते हुए एंग को अपने जैसा ही एक एयर बेंडर मिलता है जो हवा में उड़ रहा था।
एंग फौरन उसका पीछा करता है और एक ऐसे शहर में आता है जहाँ सभी अर्थ बेंडर्स रहते थे जो जमीन, पत्थरों और जमीन की मिट्टी को कंट्रोल कर सकते थे। बेचारा एंग ये देखकर थोड़ा उदास हो जाता है कि इसे जो बच्चा उड़ते हुए दिखाई दिया था वो कोई एयर बेंडर नहीं था बल्कि एक साइंसदान का बेटा था और अपने डैड के दिए गए गैजेट की मदद से उड़ रहा था। ये लोग इस साइंसदान से भी मिलते हैं जो इन्हें बताता है कि फायर बेंडर अक्सर यहाँ पर आकर धमाके करते हैं जिनसे बचने के लिए इसने बहुत सी इजादात की हैं। इसने बादशाह के लिए बहुत से हथियार भी बनाए थे। साइंसदान का बेटा एंग से कहता है कि तुम तो एक एयर बेंडर हो, तुम हमारी मदद कर सकते हो। दूसरी तरफ इसी बच्चे के उड़ने की खबर फायर बेंडर्स को भी पता चलती है कि अर्थ बेंडर्स के एक इलाके में एक उड़ता हुआ लड़का नजर आया है, जरूर वो एयर बेंडर होगा। फायर बेंडर का शहजादा ज़ूगू इस बार भी अकेले अपने अंकल के साथ अर्थ बेंडर्स के शहर आने का फैसला करता है और इसी शहर में कटारा एक ऐसे लड़के के बारे में पता चलाती है जो फायर बेंडर्स के लिए जासूसी कर रहा था और जब वो अपने साथी के साथ इनका पीछा करती है तो इन्हीं के हाथों पकड़ी जाती है। ये सभी फायर बेंडर्स मिलकर इस पर हमला कर देते हैं। वो अपने साथी के साथ मिलकर जल्दी इन्हें शिकस्त दे देती है, जबकि दूसरी तरफ इसका भाई एक साइंसदान के साथ मिलकर बड़े हवा के गुब्बारे का डिजाइन बनाने में कामयाब हो जाता है। इस शहर में एंग ये पता चलाता है कि फायर बेंडर्स यहाँ पर अपनी आग से हमला नहीं करते बल्कि वो तो इस शहर में किसी खास केमिकल का इस्तेमाल करते हुए आग के हमले और धमाके कराते हैं और यकीनन इनके शहर के अंदर का ही कोई आदमी फायर बेंडर्स की मदद करता है। एंग इस काम में मुलविस जिस लड़के का नाम बताता है कटारा इसे जानती थी। इसके साथ मिलकर तो इसने फायर बेंडर्स को शिकस्त दी। वो लड़का तो इसे अच्छा इंसान लगा था, लेकिन जब बाहर जाकर वो दोबारा इस लड़के से बात करती है तो वो लड़का इसे अपना प्लान बताता है कि कैसे वो साइंसदान के सामान को बादशाह के पास ले जाते हुए एक बम में बदल देंगे जिसके नतीजे में वहाँ के बादशाह मर जाएंगे। कटारा को ये सुनकर यकीन नहीं हुआ था कि जिस लड़के पर इसने भरोसा किया वो इतना बुरा हो सकता है और अब वो एंग के साथ मिलकर बादशाह को बचाने के लिए निकलती है, जहाँ पर एंग का सामना ज़ूगू से हो जाता है। ये लोग लड़ते लड़ते शहर की तरफ आ जाते हैं। ज़ूगू जब अपनी फायर से एंग पर हमला करता है तो यहाँ शहर में आग लग जाती है जिसे एंग अपनी एयर बेंडिंग महारत से बुझाने में लग जाता था। अर्थ बेंडर्स को भी यहाँ फायर बेंडर्स के आने का जब पता चलता है तो इनके सिपाही फायर बेंडर को पकड़ने आ जाते हैं और तब ज़ूगू के अंकल इन सभी सिपाहियों के सामने अपनी फायर बेंडिंग की महारत दिखाते हैं ताकि इन सब की तवज्जो शहजादे ज़ूगू की तरफ ना जाए, जिसके नतीजे में अंकल और एंग दोनों ही पकड़े जाते हैं। इस दौरान जब फायर बेंडर का एक साथी बादशाह को मारने के लिए बम वाले एक बॉक्स के ऊपर आग से जले एक तीर से हमला करने वाला होता है तो कटारा अपनी वाटर बेंडिंग महारत का इस्तेमाल करती है और तीर को बचाकर बादशाह को बचा लेती है। यहाँ कटारा का भाई साइंसदान से पूछता है कि तुम बादशाह के खिलाफ ये काम क्यों कर रहे हो, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं ये करने पर मजबूर हूँ। फायर बेंडर्स ने मेरे बेटे को कत्ल करने की धमकी दी है। कटारा एंग से कहती है कि ये सब बातें छोड़ो, हमें एंग को बचाने के लिए महल में जाना होगा और साइंसदान इन्हें महल के खुफिया रास्ते के बारे में बताता है जो जेल तक जाता था। सीन कट होकर हमें माजी का एक सीन दिखाया जाता है। 100 साल पहले जब एंग छोटा था इसका एक बहुत अच्छा दोस्त था और वो एक अर्थ बेंडर था। सबसे अच्छी बात ये थी कि इस वक्त जो अर्थ बेंडर्स का बादशाह था वो एंग का 100 साल पुराना बचपन का दोस्त था जो अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन वो एक नजर में एंग को पहचान लेता है। यहाँ कटारा और इसका भाई जो एंग को बचाने के लिए खुफिया रास्ते से जेल की तरफ जा रहे थे, एक खुफिया सुरंग इनके रास्तों में आ जाती है जिसके बाहर इनकी मुलाकात एक शख्स से भी होती है जिससे इन्हें बताया था कि तुम इस रास्ते को अपने प्यार से ही पा सकते हो। लेकिन ये दोनों बहन भाई जो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे और इस सुरंग में खो जाते हैं। जब वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ते हैं इनका सामना एक मॉन्स्टर से हो जाता है। वो दोनों ही खौफ से हाथ पकड़ते हैं। जैसे ही वो ऐसा करते हैं मॉन्स्टर खामोश हो जाता है। कटारा समझ जाती है कि ये इनके प्यार की वजह से हुआ है। वो इसी मॉन्स्टर से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है तो मॉन्स्टर यहाँ एक दीवार को तोड़ता है और रास्ता बता देता है और अब हमें एंग दिखाया जाता है जिसका सामना अर्थ बेंडर्स के बादशाह से था। बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि इनकी दुनिया 100 साल पहले
पहले एंग की वजह से तबाह हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए वो अपनी तमाम अर्थ बेंडिंग ताकतों का इस्तेमाल करते हुए एंग पर हमला करता है। वो मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है, जिस पर बादशाह गुस्से से कहता है कि तुम अब भी एक बच्चे की तरह सोचते हो, एवाटार की तरह नहीं, और बच्चों के साथ मिलकर ही अजीब काम कर रहे हो। लेकिन एंग जवाब देता है कि मैं इस बार कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ। मैं इस वक्त इस दुनिया को किसी भी कीमत पर तबाही से बचाऊंगा और मुझे इस काम के लिए आपकी जरूरत होगी। ये सुनकर बादशाह खुश होकर इसे छोड़ देता है। दिखाया जाता है कि जंगल से गुजरते हुए जोकू के अंकल को जिस नई जेल में ले जाया जा रहा था, रास्ते में जोकू अर्थ बेंडर सिपाहियों पर हमला करके अपने अंकल को छुड़ा लेता है और हमें माजी का एक मंजर दिखाया जाता है, जिसमें हमें जोकू और इसके अंकल की ताल्लुकात के बारे में बताया जाता है। जोकू ने इनका एक बेटे की तरह ख्याल रखा और जब जोकू को अपने फादर की तरफ से अवतार को ढूंढ लाने तक इनके इलाके में ना आने की सजा दी, तो तब अंकल ने इसके साथ आने का फैसला किया और तब से अब तक ये लोग साथ थे। ये दोनों मिलकर सभी सिपाहियों को अपनी फायर बेंडिंग महारत से मार गिराते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एंग और कटारा दोबारा वाटर बेंडर्स के इलाके के लिए रवाना हो गए हैं। एंग कटारा को कहता है कि तुमने जल्दी वाटर बेंडिंग बहुत अच्छी तरह सीख ली है। कटारा जवाब देती है कि मैं अपने वाटर बेंडिंग की महारत को अपने दादा की किताब की मदद से बढ़ा रही थी। रास्ते में अपने गुफ्तगू के दौरान इन्हें जंगल में आग लगी नजर आती है। जब ये लोग नीचे उतरकर चेक करते हैं तो यहाँ एक छोटा सा गांव था। एक आदमी ने एंग को बताया कि पहले यहाँ कुछ मॉन्स्टर थे जो इंसानों को गायब कर देते थे और फिर फायर बेंडर्स ने भी यहाँ हमला करके हमारे इलाके को तबाह कर दिया। एंग को भी यहाँ पर एक दूसरे डायमेंशन की तवानाई महसूस हो रही थी। सीन कट हो जाता है और हमें फायर बेंडर्स के शहर में जोकू की बहन को दिखाया जाता है, जो अपने फादर को कह रही थी कि इन्हें आर्मी जनरल की मदद से एवाटार को तलाश करना चाहिए। इसके डैड कहते हैं कि ठीक है, तुम ये भी करके देख लो, लेकिन जो एवाटार को यहाँ पहले लेकर आएगा वही यहाँ का राजा बनेगा। ये काम चाहे पहले तुम करो या जोकू, लेकिन ये बात याद रखना कि जोकू बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आता है। जबकि अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तबाहशुदा गांव में यहाँ एंग को दूसरी डायमेंशन की तवानाई महसूस हो रही थी। वो अपनी एवाटार की महारत से इस्तेमाल करते हुए अपने और अपने दोस्तों की सोल को दूसरी डायमेंशन के अंदर ले जाता है, जहाँ इनके सामने एक अजीबोगरीब मॉन्स्टर आता है, जो गुस्से में इन तीनों को एक ही हाथ से मारकर दूर गिरा चुका था और बहुत जोर से चीख रहा था। इसी दुनिया में कटारा के एक भाई को एक फॉक्स मिलती है जो इससे कहती है कि जिस मॉन्स्टर को तुमने देखा है वो बहुत दर्द में है, तुम इसे दर्द से निकाल दो, तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। यहाँ दिखाया जाता है कि कटारा को अपनी मॉम इसी दुनिया में नजर आ रही है। वो अपनी माँ के पास जाना चाहती है, लेकिन अचानक फायर बेंडर्स का इन पर हमला हो जाता है। इसे बचाने के लिए कटारा की माँ कटारा को एक जगह छुपा देती है और फिर फायर बेंडर्स इसी की माँ को इसकी आंखों के सामने जलाकर मार देते हैं। ये इसके बचपन की यादें थी जिसमें वो मुकम्मल तौर पर खो गई थी कि अचानक एक नया मॉन्स्टर इसके सामने आता है और इसे कैद कर लेता है। इसी दुनिया में कटारा के भाई को भी कुछ ख्याल आते हैं, जहाँ इसके फादर और इसके अंकल एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि ये लड़का बेकार है, वो कोई मास्टर नहीं बन सकता। ये ख्यालात इसे तकलीफ देते हैं। वो भी इन्हीं ख्यालों में गुम हो जाता है और अचानक वो मॉन्स्टर जिसने कटारा को कैद किया था इसके भाई को भी कैद कर लेता है। अब तो एंग को भी इस दुनिया में अपना एयर बेंडर का टेम्पल नजर आ रहा था, लेकिन वो एक ही सेकंड में समझ जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। वो अपनी तमाम तर तवज्जो पर देखने पर लगा देता है कि असल में वहाँ है क्या, और वो एक मॉन्स्टर को देखता है जो इसे कहता है कि तुम इतने सालों बाद ऐसे इंसान मेरे सामने आए हो जो मेरे जाल से बच गए, वरना जो भी मेरे जाल में आता है मैं इसे कैद कर लेता हूँ। मैं जान चुका हूँ कि तुम एक एवाटार हो, मैं पहले भी कई एवाटारों से लड़ चुका हूँ। वो इससे पूछता है कि क्या तुम मेरी कोई चीज लाई हो। एंग कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ अपने दोस्तों को बचाने आया हूँ। जैसे ही वो कहता है कि इसके और मॉन्स्टर के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन एंग जो यहाँ पर एक सोल था अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो इस मॉन्स्टर से हार जाता है और वहाँ से भागकर एक घर के अंदर आता है, जहाँ पर इसे अपने मास्टर मिलते हैं। इनके गले लगकर इनसे कहता है कि आप कहाँ चले गए थे, मुझे आपकी जरूरत है। अब एंग इनसे पूछता है कि मैं अपने दोस्तों को इस मॉन्स्टर से कैसे बचाऊं। मास्टर बताते हैं कि ये मॉन्स्टर लोगों को इनकी पुरानी यादों के जरिए कैद करता है, लेकिन एवाटार इसके जाल में नहीं फंसते। पिछली बार
बार फायर नेशन के एक एवाटार ने इन्हें अच्छी टक्कर दी थी और वो इनकी कोई खास चीज चोरी करके ले गया था। अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुम जाकर इस मॉन्स्टर की वो चीज ले आओ। ये फायर बेंडर तो इनके दुश्मन थे। इनके इलाके में जाना एंग के लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन एंग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चनाचे वो जल्दी इस सोल की दुनिया से हकीकी दुनिया में वापस आ जाता है और फायर बेंडर्स के इलाके में जाता है। यहाँ पर एक आदमी एक फायर बेंडर जैसे लगता था कि चारों किस्म के बेंडर्स के दरमियान अमन होना चाहिए, वो एंग की मदद के लिए मान जाता है और एंग को अपने एवाटार वाले टेम्पल में लेकर आता है, जहाँ एवाटार की जमा की हुई बहुत सी चीजें थी। लेकिन एंग को समझ नहीं आ रहा था कि इसमें दो मॉन्स्टर की सबसे अहम चीज क्या होगी। इससे पहले कि वो यहाँ से कुछ उठाता, यहाँ पर दूसरे फायर बेंडर्स एंग को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। अच्छा फायर बेंडर से कहता है कि तुम अपना काम करो, इनको मैं खुद संभाल लूंगा। वो इन फायर बेंडर्स को संभालने की कोशिश में लग जाता है, जबकि एंग अपने एवाटार की ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फायर बेंडर्स के एवाटार से भी मिलता है, जो इसे बताते हैं कि मेरे पास एक मॉन्स्टर की माँ की मूर्ति है। वो अब हकीकी दुनिया में वापस आकर जल्दी से वो मूर्ति उठाकर मॉन्स्टर के पास जाने ही वाला था कि यहाँ एक मॉन्स्टर आकर एंग पर हमला कर देता है। ये मॉन्स्टर एक बाउंटी हंटर का था, जिसे जोगू और इसके अंकल ने एवाटार को पकड़ने के लिए हायर किया था। एंग इन दोनों के कब्जे में आ जाता है। एंग इन दोनों को समझाता है कि प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मुझे अपने दोस्तों को बचाने दो, फिर मैं दोबारा खुद तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। जिस पर जोगू जवाब देता है कि दूसरों को बचाने की सोच हमें कमजोर बनाती है। और यहाँ हमें माजी का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर जोगू के फादर जंग में लड़ने की हिकमत अमली बना रहे थे, जिनके मुताबिक वो अपने ही बहुत से फौजियों को मरवा कर दुश्मन की तवज्जो हटाकर इन्हें खत्म कर देंगे। पर इस ख्याल पे जोगू का कहना था कि हमें अपने लोगों को नहीं मरवाना चाहिए। अपनी हिकमत अमली पर सवाल उठाने की वजह से जोगू के फादर इसे कहते हैं कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सीन कट होकर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जोगू के डैड ने अपनी फौज को जोगू के सामने भेज दिया, जो इसे कह रहे थे कि तुम आराम से एवाटार को हमारे हवाले कर दो, वरना हमारे पास तुम्हें मारने तक का हुक्म है। जोगू को ना चाहते हुए भी एवाटार अपने डैड के सिपाहियों के हवाले करना पड़ा था। वो एंग को एक मंदिर में ले जाते हैं और इसे बांध देते हैं और रात को कोई इसे बचाने आता है। यहाँ हमें एक लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें एंग और इसके बचाने वाले सिपाही बाकी सभी सिपाहियों से लड़ते हैं और यहाँ से गायब हो जाते हैं। एंग देखता है कि जोगू ही इसे बचाने आया था। वो हैरान होकर जोगू से कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो कि तुमने मेरी मदद की, हालांकि तुम मेरे दुश्मन थे और तुम्हारी एवाटार पर लिखी गई किताब भी कमाल की है, तुम बहुत ज़हीन हो। जोगू कहता है कि पागल मत बनो, मैं अभी भी तुम्हारा दुश्मन हूँ और किसी भी हाल में तुम्हें खुद पकड़कर अपने इलाके में लेकर जाना चाहता हूँ। ये बात कहकर जोगू ने एंग पर हमला कर दिया। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। एंग इसे नीचे गिराकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे चेहरे के साथ साथ तुम्हारे दिल में भी एक गहरा जख्म है। और इस कहानी को जानने के लिए हमें माजी में दिखाया जाता है कि जोगू के डैड जोगू से लड़ रहे हैं। जोगू इन्हें मारता है, लेकिन चाहकर भी इन्हें मार नहीं पाता, जिस पर इसके डैड इसे कहते हैं कि दूसरों को बचाने की ख्वाहिश हमें कमजोर बनाती है। जोगू ने अपने डैड को ना मारकर खुद को कमजोर साबित कर दिया था और इससे पहले भी इसने अपने डैड को हिकमत अमली पर सवाल उठाया। इन दोनों चीजों की सजा इसके डैड इसकी एक आंख जलाकर देते हैं। सीन कट होकर दोबारा हाल में शिफ्ट होता है, जहां एंग जोगू को एक कश्ती में बिठाकर इसे वहां से ये कहते हुए भेज देता है कि मैंने अपने दोस्तों को बचाकर तुमसे जरूर मिलूंगा। जोगू इस पर आग से हमला करता है, जिसका एंग पर कोई असर नहीं होता। मंजर कट जाता है और हमें माजी में दिखाया जाता है कि जब जोगू की आंख जली हुई थी, तब इसके डैड इसके पास आकर कहते हैं कि तुम्हें जंग में सिपाहियों के बैच को बचाने की पड़ी थी, इसीलिए अब तुम्हारी सजा है कि तुम इस बैच के साथ हमारे इस इलाके से निकल जाओगे, तब तक के लिए जब तक कि तुम्हें कोई एवाटार नहीं मिल जाता। नए सीन में दिखाया जाता है कि एंग दोबारा जले हुए गांव में आकर दूसरी डायमेंशन में पहुंच चुका था और वो वहां मॉन्स्टर की खोई हुई मूर्ति वापस करता है। बदले में मॉन्स्टर तमाम इंसानों को आजाद कर देता है। एंग को यहाँ कटारा और इसका भाई मिले थे, जिनको देखने से ज्यादा वो इस चीज से खुश था कि बाकी गांव वाले अपने खोए हुए लोगों से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। ये लोग आखिरकार वाटर बेंडर्स के इलाके तक पहुंच जाते हैं, जहां तमाम वाटर बेंडर एवाटार को देखकर इसलिए खुश हैं कि क्योंकि वो जानते हैं कि फायर बेंडर्स इन पर हमला करने वाले हैं और एवाटार के यहाँ होने की वजह से वो इनसे जंग आसानी से जीत जाएंगे। जिसके फायर बेंडर्स के इलाके में जोगू की बहन कुछ लोगों से लड़ रही है। वो अपने फायर बेंडर की महारत का इस्तेमाल करती है और इसके डैड इसे
बताते हैं कि तुम तो बहुत सुस्त और बेकार हो। ये सुनकर इसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्तों से कहती है कि मैं सब जानती हूँ कि ये मेरे डैड की चाल है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं एक मलका बनूं। वो चाहते हैं कि इनका बेटा ज़ोको ही बादशाह बने, लेकिन मैं इससे ज्यादा काबिल हूँ और मैं ये बात साबित करके रहूंगी। वाटर बेंडर्स के इलाके में जब बड़े वाटर बेंडर्स एंग से बात करते हुए जंग की हिकमत अमली बनाने का सोचते हैं तो एंग इन्हें कहता है कि मैं इस सब के लिए अभी बहुत छोटा हूँ और मैं अब भी अपने दोस्तों की मदद लेता हूँ। और वो ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और इसे कहते हैं कि तुम कैसे एवेटार हो, एक बेकार एवेटार जिसे अपने कामों में अपने दोस्तों की मदद की जरूरत होती है, जबकि एक एवेटार इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो अकेले ही किसी भी मुश्किल का सामना कर सके। ये सब सुनकर एंग बहुत उदास हो चुका था। यहाँ कटारा जो एक अच्छी फायर बेंडर थी, जब वो यहाँ के लोगों से मिलती है इसे मालूम होता है कि यहाँ की औरतें जंग में भी हिस्सा नहीं लेती, लेकिन वो अपनी वाटर बेंडिंग की महारत का इस्तेमाल लोगों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए करती हैं और कटारा को ये बात गलत लगती है। यहाँ एंग एक नए एवेटार से मिलता है इनकी ताकतों को एक्टिवेट करने के लिए और ये एवेटार एंग को बताते हैं तुम वही गलती कर रहे हो जो मैंने की थी। मैंने भी अपने लोगों को छोड़कर रूहों की दुनिया में लोगों की मदद करना शुरू कर दी थी और इसीलिए लोग अभी तक मेरी इज्जत नहीं करते और ये सब तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम्हें अपने दोस्तों को छोड़कर अपनी तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए। इन्हीं वाटर बेंडर्स के इलाके में कटारा के भाई को सफेद बालों वाली लड़की मिलती है और वो सोचता है कि वो इससे पहले भी मिला है और अचानक इसे याद आता है कि वो इस लड़की से रूहों की दुनिया में मिला था, एक लोमड़ी की शक्ल में, जिसने इसे मॉन्स्टर की मदद करने को कहा था। मगर ये कितना अजीब था कि एक लड़की रूहों की दुनिया में भी हो और हकीकी दुनिया में भी। तब ये लड़की इसे बताती है कि असल में बचपन में मैं बहुत बीमार रहती थी, इसलिए मेरे डैड ने चांद की रूह से मदद मांगी और चांद की मदद से हम वाटर बेंडिंग कर सकते हैं और चांद ने मुझे अपनी रूह का थोड़ा सा हिस्सा दे दिया, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा भी हूँ और किसी भी वक्त इंसानों की इस दुनिया से रूहों की दुनिया में भी जा सकती हूँ। यही फायर बेंडर्स के इलाके में ज़ोको की बहन अपने डैड को अपनी फायर बेंडिंग की महारत दिखाती है, जिसमें इसने अपने हाथों से बिजली भी निकाल ली थी। ये देखकर इसके डैड खुश हो जाते हैं, जबकि इस मंजर में हमें दिखाया जाता है कि फायर बेंडर्स अब वाटर बेंडर्स के इलाके पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इनके पास एयर बैलून भी था जिसके अंदर फायर बेंडर्स के जनरल थे। वाटर बेंडर्स भी इस जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे, लेकिन इनके पास इतनी बड़ी फौज नहीं थी कि वो फायर बेंडर का सामना कर सके। फिर कटारा इन्हें मशवरा देती है कि खवातीन भी इस जंग में हिस्सा लें। अपनी बात को साबित करने के लिए वो यहाँ के सरदार से अपनी अच्छी वाटर बेंडिंग की महारत के साथ लड़ती हैं और वो साबित करते हैं कि खवातीन भी इस जंग में हिस्सा ले सकती हैं। यहाँ पर हमला हो जाता है। एंग, कटारा और सभी लोग इस हमले को रोकने लग जाते हैं, लेकिन ज़ोको के अंकल अपने जनरल को बताते हैं कि आज पूरा चांद है। वाटर बेंडर्स को अपनी ताकत चांद से मिलती है, इसलिए आज वो लोग तुमसे हार नहीं सकते। और फिर जनरल ज़ोको के अंकल से कहता है कि मेरा मंसूबा इनको शिकस्त देने का नहीं है, लेकिन मेरा मंसूबा कुछ और है। मैं जानता हूँ ऐसा चांद साल में एक बार आता है और जिस दिन चांद गोल और इस तरह चमकदार होता है, इस दिन चांद की रूह और समंदर की रूह आबशार के पिछले हिस्से में मिलती हैं। वो कहते हैं कि मैं दोनों ही रूहों को मार दूंगा। ज़ोको के अंकल जनरल से कहते हैं कि ये बहुत ही गलत ख्याल है, ऐसा करने से रूहों की दुनिया में और इस दुनिया में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तबाही हो सकती है। लेकिन जनरल कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अब वो चांद की रूह को तलाश करने की झील के पास पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ोको यहाँ एंग को पकड़ने आ चुका है, जिससे कटारा अब लड़ रही है। और इस बार कटारा अपनी वाटर बेंडिंग महारत के साथ ज़ोको को आसानी से पकड़ लेती है। इसी वक्त जनरल चांद की रूह को मारने लगता है। ज़ोको के अंकल इसे बताते हैं चांद की रूह की ताकत एक अवतार से ज्यादा होती है, तुम इसे मार नहीं पाओगे। लेकिन वो जनरल वाटर बेंडर्स को मारने के लिए चांद की रूह को पकड़ लेता है। चांद अचानक सुर्ख हो गया था। बाद में वो शख्स अपने जादुई खंजर से चांद की रूह को मार डालता है और इस तरह चांद काला हो जाता है। चांद के खत्म होने से वाटर बेंडर्स की ताकत भी खत्म हो जाती है। फायर बेंडर्स ताकतवर हो जाते हैं और वो हमला करके इनके इलाके को खत्म करने लगते हैं, यहाँ तक कि वाटर बेंडर्स का मंदिर भी टूट जाता है। ये बिल्कुल वही मंजर है जो क्योशी ने एंग के विजन में दिखाया था। एंग यहाँ के लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन फिर इसे क्योशी के वो अल्फाज याद आते हैं कि एक एवेटार के लोगों की फिक्र छोड़कर खुद पे ध्यान देना चाहिए और अपनी पावर्स को उभारना चाहिए। ये सोचते ही वो समंदर के बिल्कुल दरमियान में चला जाता है और अपनी रूह समंदर को दे देता है। एक एवेटार और समंदर की रूह एक साथ मिलकर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की शक्ल में आ जाते हैं, जिसके बाद वो फायर बेंडर्स के तमाम जहाजों
जहाजों को तबाह करना शुरू कर देता है। जोकू ये देखकर इससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और जोकू को जिंदा देखकर फायर बेंडर्स का जनरल गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इसने तो जोकू को अपनी तरफ से मरवा दिया था। ये दोनों अवतार से लड़ना छोड़कर आपस में ही लड़ना शुरू हो जाते हैं। जोकू इसे बहुत मारता है और जब वो इसे शिकस्त दे देता है तो तभी ये आदमी जोकू को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस अवतार को पकड़कर भी ले जाओगे तो क्या तुम्हारे डैड तुम्हें बादशाह बना देंगे? अरे नहीं, वो तो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। वो तुम्हें आगे रखकर असल में तुम्हारी बहन को जोश दिलाते हैं, जिसकी वजह से वो तुमसे ज्यादा ताकतवर होती जा रही है और वो इसे हकीकी मलका बनाना चाहते हैं। और मैं तुम्हारा दुश्मन क्यों हूँ? क्योंकि ये भी तुम्हारे डैड का ही हुक्म है। इस मंजर के बाद हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो चांद की रूह की वजह से जिंदा थी, जिसे हमने रूह की दुनिया में फॉक्स की शक्ल में भी देखा था। वो अभी भी कटारा के भाई से बात कर रही थी। वो कटारा के भाई से कहती है कि वो एक बार फिर चांद ने मुझे अपनी रूह का एक टुकड़ा देकर मुझे जिंदा किया था और आज चांद को मेरी जरूरत है। ये कहते ही वो पानी में डूब जाती है। वो अपनी रूह समंदर और चांद के हवाले कर देती है और ऐसे एक बार फिर चांद जिंदा होकर आसमान में चमकने लगता है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद एंग अभी तक एक मॉन्स्टर की शक्ल में ही था। वो वाटर बेंडर्स के इस इलाके की तबाही की वजह से काफी गुस्से में था। जब कटारा इससे कहती है कि एंग तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमारे साथी हो, हम तुम्हारी फैमिली हैं, हम तुम्हें कमजोर नहीं कर रही बल्कि हम तुम्हारी ताकत हैं, तुम खुद को ऐसे जाया ना करो, यहाँ के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। ये सब बातें सुनकर एंग का गुस्सा ठंडा होता है और वो पानी से बाहर आता है एक बहुत ही ताकतवर एवतार की शक्ल में, लेकिन बाहर निकलकर भी वो उदास था। इसे लग रहा था कि यहाँ सारी तबाही इसकी वजह से हुई है, लेकिन इसके साथ ही इसे कहते हैं कि ये तबाही इसने नहीं की बल्कि फायर बेंडर्स ने की है। इससे तो यहाँ के बहुत से लोगों की जानें बचाई हैं और दुनिया को बहुत बड़े खतरे से भी बचाया है। एंग कहता है कि अब बस मैं पुरानी चीजों को भुलाकर अपने आगे के सफर पर तवज्जो दूंगा, जिसमें कटारा इसे वाटर और एयर बेंडिंग सिखाने में इसकी मदद करने वाली थी। मंजर कट जाता है और हम जोकू को और इसके अंकल को देखते हैं, जिनको अभी भी मालूम नहीं था कि इन्हें क्या करना है, क्योंकि वो अपने ही बाप और भाई से धोखा खा चुके थे। दूसरी जानिब जोकू के डैड जिन्हें खबर मिलती है कि वाटर बेंडर्स के बहुत से इलाकों को तबाह करने के बावजूद फायर बेंडर्स इनसे हार गए हैं। ये खबर सुनकर वो हैरान कुन तौर पर नाराज नहीं होते और अपने लोगों को बताते हैं कि ये सिर्फ इनकी एक चाल थी। वो कभी भी वाटर बेंडर्स के इलाके को तबाह नहीं करना चाहते थे। वो तो सिर्फ चाहते थे कि अवतार की तवज्जो वाटर बेंडर्स के इस इलाके को बचाने में लग जाए, जबकि पीछे से उन्होंने अर्थ बेंडर्स के इलाके पर कब्जा कर लिया था, वो भी अपनी बेटी के जरिए। यहाँ इनके लोग इनसे पूछते हैं कि जोकू का क्या होगा, जिस पर जोकू के डैड कहते हैं कुछ नहीं, बाज़ औक़ात हमें बड़े कामों के लिए ऐसे कमजोर लोगों की कुर्बानी देनी पड़ती है। अर्थ बेंडर्स के इलाके पर कब्जा करके जोकू की बहन बहुत खुश थी और कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि जोकू के डैड अपने साथियों से कह रहे होते हैं कि अब आग का गोला जमीन के ऊपर से गुजरने वाला है, जिसकी वजह से इनके इख्तियारात मजीद बढ़ जाएंगे और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।